हेलो, गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? टुडे व्हाट वी विल डू, वी हैव टू डिस्कस something about the mother of all subjects, that is philosophy optional. In around 45 minutes you will see that I'll tell you that what the subject is and how to approach this subject, and something we will discuss about the syllabus as well, right? हो सकता है कुछ लोगों ने इस सब्जेक्ट को पढ़ा हो. Those aspirants who are watching the video, if you might have studied this subject, if you might not have studied but only have heard the name of this subject, right? And if you might not have heard the name, this word may be very new for them. उनको बड़ा लिमिटेड पता होगा कि मान लो किसी ने कहा कि sometimes you can see that कि in your daily life it is said that यार फिलोसोफर मत बनो. Sometimes you can say that philosophy मत झाड़ो. इतना ही पता है उनको. और ये कब होता है? दिस हैपेंस जब कोई भारी भरकम बात कर देता है. भारी भरकम मीन्स, मान लीजिए टू फ्रेंड्स आर देयर. एक ने कहा कि यार कल मिलते हैं, कल ये काम कर लेंगे, टुमारो वी विल डू दिस वर्क. दूसरा कह रहा है यार पल का पता नहीं, कल की बात कर रहे हो. देन द अदर फ्रेंड विल से दैट कि यार क्या फिलोसोफर बन रहा है तू. कुछ को केवल इतना ही पता होगा कि फिलोसफी केवल इतनी ही है, राइट? दोज हु हैव स्टडीड द सब्जेक्ट, उनको सब्जेक्ट का एसेंस पता होगा. दे मस्ट बी नोइंग द अप्रोच और rationale or rationality or logic or reasoning that is hidden behind this subject, that lies behind this subject. They may be knowing that ki why this subject is known as the mother of all subjects, parental subject, right? This subject actually begins with thinking. Not only thinking, you can say deep thinking. अब how you can say deep thinking? चलो, see. So many examples I'll give you, and then you will come to know that what actually the subject is. And sometimes you can see that certain misapprehension or wrong apprehensions are also there regarding this subject, right? Suppose you take the example of Newton. मैं क्या बता रहा था कि this subject begins with thinking, deep thinking. मान लीजिए हम लोग सोच ना पाते. Suppose we as a human being are not in the condition to think. We are not in the condition to do the deep thinking. सोचिए क्या कंडीशन होती है अपनी. Without having the ability of deep thinking, हम लोग एनिमल से बहुत ज्यादा डिफरेंट ना होते. Why we say that, or why it is accepted, well established fact कि human being is most qualified animate of this universe.
only because of ability to think. अगर ability to think नहीं होगा, डीप थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, तो लैंग्वेज कैसे होगी? लैंग्वेज नहीं होगी तो नॉलेज को शेयर कैसे करेंगे? लैंग्वेज मीन्स कि वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर ग्रामेटिकल लैंग्वेज. Some kind of communication animals and birds also can do, but their communication ability is not like us. डीप थिंकिंग से लैंग्वेज आएगा, कम्युनिकेशन आएगा. अभी तो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है. Not only this much, but you can say that certain discoveries, inventions, actually when we think, thinking के लिए initially you can say that mind or brain or buddhi or wisdom or intellect. अभी I am not making any distinction among these words. हाँ, लेकिन this is a fact कि body cannot think. Means by our sense organs, eyes or ears or tongue or hands or thinking के लिए something other than body is needed. Or deep thinking. तो I was giving you the example of Newton. तो जब हम लोग deep thinking करते हैं, तो we have, or you can say our mind or buddhi or intellect or wisdom has a tendency to violate. और यही वायलेशन फिलोसॉफी है. वो वायलेट करती है कि जो भी दिख रहा है उसके बियॉन्ड भी कुछ है, बियॉन्ड व्हाट अपीयर्स टू अस. मान लीजिए, अभी यू विल सी दैट ऑल दीज थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्री. You all may be knowing about Newton, a scientist, a philosopher of 17th century. He is from England. मान लीजिए कि वो देख रहा है कि an object or a fruit is coming down. After seeing the object that was coming down, if Newton would have thought that, okay, object is there, this is coming down, many objects come down. But he did not do like this. वो ये कह रहा, why it is coming down? जो दिख रहा है उसके beyond क्या है? What is beyond this? Then only the law of gravitation or the discovery of the law of gravitation become possible. Tendency to violate. Tendency to violate means in this body we can see eyes, ears, tongue, so many organs. But if you think that कि ये बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ है, that's why our body moves, our body gets the knowledge. It means when you start thinking deep, when you violate what appears, tendency to violate, after violation, after violating what appears in the body, we can reach up to the soul. Soul we cannot see. Law of gravitation we cannot see. But we think about that.
We live in this world. लेकिन when you think that कि how this world came into existence, ये कोई क्रिएशन है या एवोल्यूशन है, या क्रिएशन के साथ एवोल्यूशन है, कि इनिशियली इट हैज बीन क्रिएटेड और फिर उसके बाद एवोल्यूशन हुआ. Likewise, you can say that when you see a tree, the upper part of the tree is quite visible. You can see the stem of the tree, branches of the tree, leaves of the tree, flowers of the tree, fruits of the tree. If you think that कि पेड़ तो इतना ही है, this you can say is a general kind of knowledge, a general kind of approach towards the tree. But if you think that tree is not only this much, tree is something beyond this what we cannot see. जब आप इस ट्री के रूट के बारे में बात करने लगे, सीड के बारे में बात करने लगे, when you start thinking about seed of the tree, root of the tree, सीड से ही तो सब निकला है. Whatever appears in the tree, stem or flowers or branches or leaves, this entire multiplicity has been originated from one unity. This unity you cannot see, this you cannot perceive. So you can say that this tendency of violation of our thinking, of our mind or brain or buddhi or wisdom or whatever you say, अभी तो बहुत सिंपल वे में we have to try to understand the things. If you say that this root is philosophy, तो इस ब्रांचेस में, इस स्टेम में you can include all the subjects, either from sciences or from humanities. स्टेम को you can say that ये मैथमेटिक्स हो गया है. ये फॉर्म है, स्ट्रक्ट है. ब्रांचेस में वन साइड पे यू कैन से दैट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, zoology है. एक साइड पे यू कैन से दैट सोशियोलॉजी है. एनी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है. रूट क्या है? फिलोसफी. If you imagine, if you think, if you take, if you consider this tree as the tree of knowledge, अगर मान लो इस ट्री को आप बॉडी के रूप में लो, and if you think that कि we are something more than, we use the word I walk, I eat, I sleep, I know.
आई क्या है? क्या हम लोग आई का यूज करते हैं फॉर एनी सेंस ऑर्गन्स, आईज और नोज और ईयर्स? डेफिनेटली नॉट. मान लो समवन इज ब्लाइंड, तो भी वो आई का यूज करेगा. कोई डेफ डम्ब है तो भी वो आई का यूज करेगा. इट मीन्स आई कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड only up to the sense organs, what we see. I को you cannot see. I तक you can reach. Your approach towards I is possible only after the violation of what you appears. तो देख रहे हैं उसको वायलेट करना पड़ेगा भाई. Then only deep thinking is possible. अगर ये वर्ल्ड है इसको यू कैन से दैट दिस वर्ल्ड इज बियॉन्ड कि घर मकान गाड़ी मोटर स्कूटर ऑल दीज थिंग्स चेयर टेबल सो मेनी थिंग्स आर देयर. हाउ दीज थिंग्स came into existence, who is the creator of this? Otherwise simply you can live in this world, enjoy in this world. If Newton, after seeing the object that was coming down, won't have reached up to this root, that is the law of gravitation. Why the object is coming down? Why it is not going up? अब न्यूटन को you may be knowing as a scientist, as a mathematician, but he was a great philosopher. Pythagoras ko you can say that he is a mathematician, but in the world of philosophy he has a very important place in the field of philosophy. Those who have a background of mathematics, they might have studied Leibniz theorem in mathematics. Leibniz is mentioned in your syllabus, right? तो that way you have to think. इस तरह से सिंपली आपको समझना है कि जब थिंकिंग होगी, डीप थिंकिंग होगी, तभी फिलॉसफी इज पॉसिबल. दैट्स व्हाई आफ्टर डीप थिंकिंग if someone makes a heavyweight statement, तो उसको लोग कह देते रहे फिलोसोफर हो गया क्या, फिलोसफी बोल रहा है क्या. बट व्हाई यू फॉरगेट और व्हाई पीपल फॉरगेट दैट कि फिलोसफी तो उनको पढ़ना ही है, चाहे अभी पढ़ लो चाहे बाद में पढ़ लो, या तो आज पढ़ लीजिए आप या 30 साल बाद पढ़िएगा, 40 साल बाद पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा. आप मीन्स कि एनीवन. समटाइम्स एस्पिरेंट्स कम टू मी एंड दे आस्क दैट कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से इन लोग से इस बारे में सुना है. अब इट मीन्स लाइफ का एक टाइम आता है, सबके लिए आता है, when the end of your life appears, तभी समझ में आता है लाइफ के बाद क्या होगा, क्या होता है. so many things like that. तब गॉड है, सोल है, लिबरेशन है, इमॉर्टैलिटी है, इस तरह की थिंकिंग होती है. तब समटाइम्स यू कैन सी कि बहुत सारे लोग कहने लगते हैं अरे दुनिया में क्या है, संसार में क्या है. मीन्स देयर अप्रोच goes beyond what appears in this material world.
what appears in this material world is not only restricted or limited to that appearance or that perception. जब भी ये डीप थिंकिंग की टेंडेंसी होती है, then you can see the philosophy. So simply you can say that कि philosophy originates from deep thinking, or all the subjects are originated from philosophy only. पहले के टाइम पे, अर्ली टाइम में, मीन्स अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं तो आज से approximately you can say that 2500 years before philosophy is supposed to begin. इंडिया में उससे 1000 साल पहले ले लीजिए आप, उससे ज्यादा पुराना कुछ भी नहीं है. यू कैन से दैट नो सब्जेक्ट. पहले यू कैन से कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज वाज नॉट देयर. इस तरह से कंपार्टमेंट्स नहीं थे. ये ट्री ऑफ नॉलेज है और इसी को हमको जानना है. कोई इधर इंटरेस्ट लेता था, कोई इधर इंटरेस्ट लेता था, कोई दोनों में इंटरेस्ट लेके फिर रूट में चला जाता था. अब आपको लगता है ऐसा कौन होगा? अरे होगा, है. अगर मैं एक थिंकर का नाम लूं, एंड ही इज मेंशन इन योर सिलेबस, इट डजंट मैटर कि दैट यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और साइंसेस, but definitely you would have heard the name of that thinker. वो थिंकर है एरिस्टोटल, अरस्तु. आप चाहे साइंसेस में जाते हैं तो भी एरिस्टोटल, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री. आप ह्यूमैनिटीज में आते हैं, सोशियोलॉजी, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, भी एरिस्टोटल. फिलॉसफी में तो एरिस्टोटल है ही है. तो यू कैन से दैट कि आज हम लोग ने क्या किया कि आज का अप्रोच है एनालिटिकल. वी ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स. पहले का अप्रोच था सिंथेटिकल, टू सिंथेसाइज द थिंग्स, सिंथेसिस ऑफ नॉलेज. तो जब सिंथेसिस था तो दिस ट्री ऑफ नॉलेज was considered as a single unit, as a whole. और जब कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ तो अलग अलग सब्जेक्ट्स आ गए. मैथमेटिक्स अलग हो गया, ज़ूलॉजी, बॉटनी. अभी भी प्रोसेस चल रहा है, स्टिल इवन टुडे. कैसे? मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपने सुना होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वो कहां से अलग हुआ? वो पॉलिटिकल साइंस है. वुड्रो विल्सन, अमेरिकन प्रेसिडेंट of 20th century, I think he was president of US from 1913 to 1921. He is the father of public administration. मीन्स इस हिसाब से अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी में रिलेशन ले तो यू कैन से ग्रैंडफादर. पॉलिटिकल साइंस इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. साइकोलॉजी, अगर आप 100 साल पहले चले जाए, इफ यू गो 100 years बिफोर, तो साइकोलॉजी इज नॉट taught as an independent discipline. Psychological problems were dealt in philosophy. साइकोलॉजी का फादर कौन है? उंट, जर्मन थिंकर, WUNDT. उंट इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी.
तो साइकोलॉजी का पूरा डेवलपमेंट ही यू कैन से कि इन लास्ट 100 years. उसके पहले psychological problems, some of the psychological problems are mentioned in your syllabus. Mind body relation. So far psychology was not established as an independent subject. तो philosophy का पार्ट था वो. मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर है वुडरो विल्सन, साइकोलॉजी का फादर वुंट, लाइकवाइज सोशियोलॉजी. आज से आप 200 साल पहले चले जाएं, ये 2021 है, 21 नहीं 25 है भाई. ओके राइट. अगर आप चले जाएं 1825 में, means in the first half of the 19th century, sociology was not recognized or established as an independent discipline. क्योंकि सोशियोलॉजी, ये मैं नहीं कह रहा हूं एज ए स्कॉलर ऑफ फिलोसफी, हियर माई सेइंग योर सेइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट हैज बीन एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ स्कॉलर्स. सोशियोलॉजी के फादर है ऑगस्ट कॉम्टे. ऑगस्ट कॉम्टे इज द थिंकर ऑफ 19th century. इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स सेपरेट हुए हैं. सभी नॉलेज की बात करेंगे, ऑल विल टॉक अबाउट नॉलेज. अब जैसे क्या हुआ, लॉ ऑफ फिजिक्स आर चेंजेबल, और मान लो इसको मैंने कहा क्या, ये ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस आर फ्लेक्सिबल. लॉ ऑफ फिजिक्स आर चेंजेबल और नॉट चेंजेबल. Geocentric theory was changed into heliocentric by Copernicus. साइंसेस चेंजेबल है क्योंकि ब्रांचेस के फॉर्म में है वो. स्टेम ऑफ द ट्री इज मैथमेटिक्स. ये फॉर्म है, स्ट्रिक्ट है. स्टेम ऑफ द ट्री इज नॉट फ्लेक्सिबल. लेकिन क्यों फिलोसफी को भाई स्कॉलर्स से दैट कि ये रूट है. आप किसी भी सब्जेक्ट में हायर स्टडीज लें, डीप स्टडी करें, रिसर्च करें. सपोज यू आर डूइंग योर रिसर्च इन फिजिक्स और यू आर डूइंग योर रिसर्च इन सोशियोलॉजी और you are doing your research in mathematics. डिग्री किस चीज की मिलेगी? डिग्री मिलेगी डिफिल या पीएचडी. डिफिल मीन्स डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी मीन्स डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. Why the doctor of philosophy? Why not the doctor of physics or doctor of chemistry or zoology, botany, psychology, political science or mathematics? Whenever you do or anyone does his research, suppose I have done my PhD on Gandhian philosophy, तो philosophy में भी आप रिसर्च कर सकते हो, तो वो पीएचडी इन फिलोसफी होता है. मीन्स एक तो फिलोसफी, उस पर पीएचडी. अब आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद एमफिल डीफिल आता है. अभी एमफिल तो यू नो दैट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो फिलोसफी हो जाए, हायर स्टडीज. इसीलिए दिस सब्जेक्ट हैज नॉट इंट्रोड्यूस्ड राइट फ्रॉम मिडिल एजुकेशन.
ये आपको 6 to 12 में नहीं दिखेगा, बाकी यू कैन सी, बाकी सब्जेक्ट्स यू कैन सी in your middle education, either from sciences or humanities or mathematics. तो सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बच्चा पहले जो दिख रहा है उसको समझ ले. Only after doing the general thinking, deep thinking is possible. Only after having the good study of, good understanding of the body, one can think about beyond this body, consciousness, soul, or whatever you say. तो आई थिंक यू हैव गॉट द सेंस कि डीप थिंकिंग से निकलेगा. अब डीप थिंकिंग में आप ऐसे देखिए, हम में से कोई भी ऐसा है जो गॉड के बारे में ना सोचता हो, ईदर इन फेवर ऑफ गॉड और अगेंस्ट द गॉड. किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा. मीन्स समवन कैन क्लेम दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड द गॉड, बट गॉड कैन नॉट बी परसीव्ड इन आवर जनरल एक्सपीरियंस. किसी ने सोल को देखा है? नहीं. सोचते हैं. जैसे साइंस में वायलेशन के थ्रू न्यूटन हैज रीच्ड अप टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और सर्टेन डिस्कवरीज ऑफ साइंसेस. एनर्जी, हैव यू सीन द एनर्जी? कैन यू टेल मी द कलर ऑफ एनर्जी? नहीं भाई. तो कई बार होता है कि भाई अरे बट सिंपली वी हैव टू ट्राई टू लिव दिस लाइफ. समटाइम्स कुछ लोगों को लगता है नहीं भाई, if we have got the life of a human being, if we have thinking ability, if we can do the deep thinking, तो why not to do this? और जो ऐसा करते हैं उनको यू कैन से दैट कि वो इतिहास में अपना नाम लिखते हैं. Those who do this, they make their very strong signature in history. They are even remembered even after their demise. तो कोई फिलॉसफी पढ़ के फिलॉसफर नहीं बनता है, सब दूसरे फील्ड से आएंगे. कोई मैथमेटिक्स से आएगा, कोई साइंस से, फिजिक्स से आएगा, कोई पॉलिटिकल साइंस से. अब एरिस्टोटल को आप ले लो, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ऑन वन हैंड ही इज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ऑन द अदर हैंड ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ बायोलॉजी. क्योंकि उस टाइम पे नॉलेज का कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, सेग्रीग्रेशन नहीं है, बांटना नहीं है नॉलेज को. डिवीजन नहीं है, सिंथेसिस है. राइट. तो समटाइम्स यू कैन सी कि whatever appears to us, we try to go beyond that. वो beyond that में ही you can say that कि we enter in philosophy. Or as I have told you that कि even after doing research in any discipline, degree of DPhil or PhD you will get Doctor of Philosophy. राइट. आई थिंक दिस मच इज एनफ. इतने से आप समझ रहे होंगे कि क्या है सब्जेक्ट.
क्योंकि जब तक a student does not have his you can say factual knowledge of, factual information of all these, तब तक it makes no sense to talk to him about this route. इतना ही है ये सब्जेक्ट. तो यू कैन से दैट कि कई बार लोग अभी पढ़ लेते हैं, नहीं तो बाद में तो पढ़ना ही है. अभी तो यू विल सी दैट कि व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस, तो एक ब्रांच तो आपके यहाँ कंपलसरी पेपर में आ गई है. तो यू कैन से दैट कि डीप थिंकिंग, और एंड यू हैव टू थिंक दैट कि अगर मान लो हम लोग सोच नहीं सकते, इफ यू कैन नॉट थिंक, तो आवर लाइफ इज नॉट मोर देन द लाइफ ऑफ एन एनिमल. क्योंकि सोचने से ही डिस्कवरी होगी, इन्वेंशंस होंगे, डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज आएगी, ग्रामर आएगी, लिटरेचर आएगा. एनिमल्स के पास हो सकता है कि लैंग्वेज हो, भाषा हो, सिंपल कम्युनिकेशन की भाषा, बट वो बहुत बेसिक टाइप का वो कम्युनिकेशन है. बट सिस्टमेटिक ग्रामेटिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज नॉट पॉसिबल. लिटरेचर इज नॉट फॉर देम. ये लिटरेचर है, सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, ग्रामर है, ये तो ह्यूमन वर्ल्ड में है. और ये कैसे आई? डीप थिंकिंग. Otherwise you can say that कि 5 organs what we have, कि स्किन से टच का, टंग से टेस्ट का, नोज से स्मेल का, आई से कलर का, एंड ईयर से वर्ड्स का, सब तो एनिमल्स के पास भी है. बहुत सारे एनिमल्स हैं. इफ यू टेक काऊ, बफलो, एलिफेंट, कैमल, डॉग, कैट, ये सारे ऑर्गन्स हैं. कुछ के पास थोड़ा माइंड भी है, लेकिन अपने जैसा डेवलप माइंड नहीं. अब एआई वगैरह में इन सबको चैलेंज किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है कि क्या आर्टिफिशियली वी कैन डेवलप द इंटेलिजेंस, और क्या वो वैसा ही इंटेलिजेंस है जैसा कि वी कैन सी इन द ह्यूमन बीइंग्स. वी आर अप्रोचिंग क्लोज टू दैट, बट नॉट फाइनली. राइट. तो आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देना है बस. अब जब you will understand or you can say after understanding the, or you can say after having the little understanding of the subject, तो थोड़ा सा ही जानना चाहिए कि भाई इसकी क्या क्या ब्रांचेस है. मान लो एथिक्स है, ये तो आपको पढ़ना ही है. एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये तो आपका जनरल स्टडीज का 4th पेपर है. ओके, दैट इज नॉट, यू कैन से entirely you should not think that कि वो पेपर फिलोसफी है, बट यू कैन से since the word ethics is mentioned and ethics is a branch of philosophy. अच्छा, ये ethics किसके लिए होगा? Ethics means simply you can say do's and don'ts, duties, what ought to do, what ought to be. क्या एनिमल्स के लिए यू कैन टॉक लाइक दिस? नहीं भाई, पूरी एथिक्स होगी
ह्यूमन बीइंग्स के लिए, दोज हु कैन थिंक, दोज हु आर रैशनल ह्यूमन बीइंग्स। तो इसको तो यू कैन से दैट ये सबको पढ़ना है। इन दोनों को व्हाट आई विल से दैट कि two very important prominent branches of philosophy. One is metaphysics, इसमें मेटा हटा दीजिए, बचा फिजिक्स, तो फिजिक्स तो पता है। मेटा को हम लोग ने इसके पहले डिस्कस किया। मेटा मीन्स बियॉन्ड, आफ्टर, हायर देन, फिजिक्स यू नो, physics always begins with experience. This you will see later on when we will formally study the subject. So you will see that कि western philosophy में none of my lecture is possible without talking about mathematics and physics. Meta means beyond, physics means what appears, what we can see. अब मान लीजिए इसकी भी ब्रांचेस आपको बनानी है कि फिजिक्स में तो कुछ एग्जिस्ट करता है, उसके बियॉन्ड भी कुछ एग्जिस्ट करता है। फिजिक्स में तो यू कैन से दैट ऑल दीज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट। Existence of matter cannot be denied. लेकिन बियॉन्ड दिस, मान लो कोई कहता है गॉड एग्जिस्ट, इसको हम लोग बोल देते हैं ये थियोलॉजी है। थियो मीन्स गॉड, लॉजी हर जगह लगा होगा, लॉजी मीन्स लॉजिक मीन्स साइंस, आई एम सॉरी रीजनिंग, लॉजिका। वर्ल्ड की रिकॉर्डिंग, दिस वर्ल्ड, उसको हम लोग कह देते हैं कॉस्मोलॉजी। कि अगर एनीथिंग एग्जिस्ट, if we think beyond कि how the world came into existence, what is the future of this, means if we do the deep thinking about the future of this world, इसी के रिगार्डिंग मैंने बोला क्या क्रिएशन और एवोल्यूशन या क्रिएशन प्लस एवोल्यूशन, whether this world has been created by someone, अगर किसी थियोलॉजिस्ट से आप पूछें गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, बात खत्म। अगर आप डार्विन से पूछें एवोल्यूशनरी प्रोसेस, दोनों की अपनी अपनी रीजनिंग है। कुछ ये कहेंगे नहीं भाई क्रिएशन हुआ, क्रिएशन के बाद एवोल्यूशन हुआ। व्हेन यू सी योरसेल्फ, तो तीसरी ब्रांच आ जाएगी मेटाफिजिक्स की, साइकोलॉजी। अब एक अलग सब्जेक्ट हो गया, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस।
ये तो सब जानते हैं कि बॉडी इज मेड ऑफ मैटर। अगर बॉडी इज मेड ऑफ मैटर तो कॉन्शियसनेस कैसे आई? कॉन्शियसनेस कहां से आई? बॉडी को तो वी कैन सी, कॉन्शियसनेस वी कैन नॉट सी। तो कुछ लोग सोल की बात करेंगे, कुछ लोग बॉडी को ही कॉन्शियस मान लेंगे। हर तरह का अप्रोच यू विल सी दैट कि यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मान लो हम लोग थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो थिंकिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड थिंकिंग? आपका पेट भरा है तब भी आप सोचोगे, आपका पेट खाली है तब भी आप सोचोगे। अगर पेट खाली है तो यू विल थिंक अबाउट ब्रेड एंड बटर, लाइवलीहुड, कैसे अपनी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट को, कैलोरी रिक्वायरमेंट को, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। इफ योर स्टमक इज एम्प्टी, मटेरियलिज्म। ये भी अप्रोच होगा। सो मेनी मटेरियलिस्ट यू कैन सी। इफ योर स्टमक इज फुल, यू आर सेटिस्फाइड। अब आप क्या सोचेंगे? उसके उसके बियॉन्ड स्पिरिचुअलिज्म। दोनों अप्रोच मिलेगा आपको। मान लो व्हाट आई से दैट कि सपोज बिफोर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट फिलोसॉफी, व्हाट आई से दैट कि ए पर्सन इज लिविंग इन ए पाइप। तो पाइप में रह रहा है, पाइप तक ही उसकी पूरी दुनिया है। जब someone does the study of philosophy, पाइप से बाहर निकल आएगा, and then he can see the multiple approaches for any fact, for any concept. Means before studying the subject, in my view, a person, someone is living in a pipe, he cannot see beyond that. अभी मान लो गॉड ही है, अब गॉड को आपको लगता होगा बड़ा सिंपल है भाई, गॉड है या नहीं है। अरे गॉड के रिगार्डिंग भी तो, अच्छा गॉड एक है कि कई है? अगर कई है तो पॉलीथिज्म है, एक है तो मोनोथिज्म है। हो सकता है कई हो लेकिन हायरार्की हो, तो हेनोथिज्म हो सकता है। हो सकता है एक टाइम पे एक ही गॉड की पूजा होती हो, तो कैथोलिसिज्म हो सकता है। अरे इतना सिंपल नहीं है भाई ये। सिंपल मींस कि जब पाइप में रहेंगे तो सिंपल। इस मोनोथिज्म के भी मल्टीपल अप्रोचेस हैं। बोलने में हम लोग कह देते हैं अच्छा भाई गॉड को मानते हो कि नहीं, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब नो वन कैन मेक यू और यू कैन से befool you regarding all these religious concepts. तब एक आंसर वो देगा, 10 आंसर आप देंगे। तो आपको ये पता होगा कि इसमें भी डिफरेंट कंसेप्ट्स क्या है। वो गॉड के बारे में बोलेगा, आप पूछेंगे अच्छा अच्छा डाइज्म जानते हो क्या है, पैंथिज्म जानते हो, सब थीज्म है कि पैंथिज्म क्या है, पैनेंथिज्म क्या है, सब मोनोथिज्म वाले। तो व्हाट यू हैव टू ट्राई टू डू, यू हैव टू ट्राई टू कम आउट फ्रॉम
your life, what you are living in the pipe. And this is possible only through the study of this great parental subject. And that makes this subject very interesting. And that's why you will see that बड़ी diversity है इस सब्जेक्ट कि सबका रूट यही है. And when we will discuss about the syllabus, then you will see epistemology is also one very important branch, and this is related to questions related to knowledge. तो यही दोनों यू कैन से दैट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको जानना कैसे, देख के, रियलाइजेशन से, दोनों के कोऑर्डिनेशन से. हाउ यू केम टू नो दैट द फायर इज हॉट, टच. हाउ यू नो दैट शुगर इज स्वीट, टेस्ट. तो यू कैन से दैट जो क्वेश्चन आपके यहां आएगा मेजरली पेपर 1 में इन्हीं दोनों ब्रांचेस से आएगा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स. तो यू नो दैट कि दिस इज applied part of the subject where we talk about the duties and all these. So now this is common to all. Metaphysics and epistemology are two classical branches, and that way you will see कि in entire paper 1 क्वेश्चन इन्हीं दो पार्ट से होगा. या तो इससे होगा कि वो किस एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है थिंकर, या तो यू कैन से दैट नॉलेज कैसे मानता है. अब when you will see the syllabus, then you will see that कि total 40 units are there. Unit 20 units are in paper 1 and 20 units are in paper 2. अब 20 units में हर यूनिट को यू कैन से दैट मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी. तो 40 possible approaches are there for any thinker. अब ये यूनिट 1 है जहां केवल 2 थिंकर हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल. तो ग्रीक थिंकर जो अभी मैंने एरिस्टोटल का नाम लिया कि रैशनल थिंकिंग प्रोसेस सपोज टू बी स्टार्टेड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड समवेयर अराउंड 6th century BC, लगभग 2500 साल पहले. वहां से 2 थिंकर आपके आ गए, प्लेटो, एरिस्टोटल. या तो मेटाफिजिक्स या एपिस्टेमोलॉजी. दैट्स व्हाई यू विल सी कि वेस्टर्न में केवल 20 थिंकर्स हैं और इंडियन में 9 स्कूल्स हैं. टोटल यू कैन से दैट मान लो 30 into 2 मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी. उसी से सारी चीजें निकलेंगी. सारे थिंकर मर चुके तो कुछ नया तो नहीं आएगा. तो पेपर 1 के पार्ट में नो थिंकर इज अलाइव, ऑल द थिंकर्स आर ऑलरेडी डेड. तो वो कुछ नया तो कहेंगे नहीं. को पढ़ना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द आंसर. इसको यू कैन से दैट ये ग्रीक पार्ट हुआ. इसको यू कैन से दैट कि ये मॉडर्न मीन्स 17th to 19th century, इतना मान लो आप हीगल को भी लेके. अब इसी में यू विल सी दैट एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म. अब रैशनलिज्म
रैशनैलिटी इज ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज. ह्यूमन बीइंग. कौन कहेगा? मैथमेटिशियंस. मैथमेटिक्स कैन नॉट बी परसीव्ड. बाकी 5 यूनिट यू कैन से 20th सेंचुरी. तो ये तो ग्रीक थिंकर आपको देखना है, या मॉडर्न, या 20th सेंचुरी के थिंकर्स देखना है. टोटल 20 थिंकर्स हैं. इंडियन में यू कैन से दैट 9 स्कूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहां पे यू कैन से दैट न्याय वैशेषिक एक साथ आ गए. 9 स्कूल्स. सब में वही आएगा, मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी. यू कैन से दैट metaphysics, epistemology. Epistemology means the queries which are related to knowledge. What is knowledge? How the knowledge is possible? Source of knowledge, limits of knowledge, validity, authenticity of knowledge. ऐसा तो नहीं पता लगा स्नेक इन रोप है. नॉलेज हो रही है स्नेक की है रोप, सिल्वर इन शेल है, सीप में चांदी. राइट. तो यू विल सी दैट कि अब चारवाक, यू विल सी दैट प्योर मटेरियलिस्टिक. इनके लाइफ की फिलॉसफी ही है कि जब तक जियो सुख से जियो, मौज करो, ईटिंग एंड इंजॉइंग, वो भी इन द मटेरियल वर्ल्ड. कोई रीबर्थ नहीं, कुछ नहीं. जरूरी थोड़ी कि सब लोग लिबरेशन के लिए जाए भाई. कुछ की थिंकिंग मटेरियलिस्टिक भी तो हो सकती है. वही है चारवाक. खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो. इनसे पूछेंगे आप स्वर्ग क्या है? हैप्पीनेस इज द हेवन. हैप्पीनेस इज द हेवन. नरक क्या है भाई? डिस्ट्रेस इज द हेल, सोरो इज द हेल. लिबरेशन क्या है? डेथ इज द लिबरेशन. फिर यू कैन से जैनिज्म, बुद्धिज्म, न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग. योग earlier this was not mentioned in your syllabus, now it is mentioned in your syllabus. मीमांसा, वेदांत. तो 20 units are there. 11 units from western, 9 units from Indian. कोई sectional classification नहीं है. No sectional division is, you will see in paper 1. Although in examination hall, examination paper you will see सेक्शन ए, सेक्शन बी. सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये क्लासिकल फिलॉसफी है, केवल या तो मेटाफिजिक्स या एपिस्टेमोलॉजी. इन 20 वेस्टर्न थिंकर्स है, 9 इंडियन स्कूल्स. अब इंडियन में स्कूल्स आर मोर इंपॉर्टेंट. जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांत. यहां पे यू विल सी दैट कि प्लेटो, एरिस्टोटल, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज, कैंट, ऑल दीज. पेपर 2 अगर आप देखेंगे उसमें यू विल सी दैट सेक्शनल डिवीजन इज देयर. वो प्रॉब्लम का पार्ट है. सेक्शन ए में हम लोग देखते हैं सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी की प्रॉब्लम. अब ये जब आप देखेंगे लगेगा एकदम ये तो जनरल स्टडीज टाइप का है. इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, राइट्स, ड्यूटीज, सॉवरेंटी, सब जानते होंगे. सॉवरेंटी इज अमंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स. ट्रिपल SDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. अब देखिए इसमें से कितना मेंशन है. सॉवरेन मेंशन है, सोशलिस्ट भी मेंशन है, सोशलिज्म, सॉवरेन, सोशलिस्ट. सेक्युलर भी मेंशन है, सेक्युलरिज्म. डेमोक्रेटिक भी मेंशन है, डेमोक्रेसी.
लेकिन ये इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ना है. थॉट एज ए थॉट. इसी में यू विल सी दैट कि क्राइम एंड पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट भी है. अब आपको लगता होगा कैपिटल पनिशमेंट इन फिलोसफी. सॉरी, आप कैपिटल पनिशमेंट किसको देंगे? कैन यू गिव दिस टू एन एनिमल? नहीं, ह्यूमन को ही तो दिया जाएगा. और उस ह्यूमन को जो क्रिमिनल है. और क्रिमिनल क्राइम हमेशा डीप थिंकिंग, विदाउट हैविंग डीप थिंकिंग एंड प्लानिंग, तो क्राइम इज नॉट पॉसिबल. वो गलत डायरेक्शन में सोचेगा बस. गांधी है, अंबेडकर है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज मेंशन इन योर सिलेबस. सोशल प्रोग्रेस इज मेंशन इन योर सिलेबस. फीमेल फेटिसाइड इज मेंशन इन योर सिलेबस. फिलॉसफी में केवल ऐसा नहीं है कि ओनली मेटाफिजिक्स इज देयर, उसका अप्लाइड पार्ट भी होगा. उसको सोसाइटी में अप्लाई कीजिए, स्टेट में अप्लाई कीजिए, तभी तो जस्टिस की बात होगी. इंडिविजुअल एंड स्टेट की बात होगी, गवर्नमेंट की बात होगी, मोनार्की, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में मार्क्सिज्म, एनार्किज्म, सोशलिज्म इज मेंशन. तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए मान लीजिए सोशल प्रोग्रेस को थोड़ा सा अगर कि क्या करना है इसमें. सोशल प्रोग्रेस है, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि टुडे ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग अंडर मोर थ्रेट और लेस थ्रेट. डेफिनेटली यू विल से दैट मोर थ्रेट. ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग अंडर मोर थ्रेट. तो कैसा डेवलपमेंट है भाई, कैसा प्रोग्रेस है? इसीलिए लोग लिख के गए हैं, किसका सिंगार किसकी सेवा, नरका ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा, जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं. कैसा डेवलपमेंट है, कैसी प्रोग्रेस है भाई ये? Information revolution is there, communication revolution is there. We can send information from any part of the world to the other part within no time. But there is no communication between two families living at the same floor in a society. ये फिलॉसफी आएगी. क्यों ह्यूमन बीइंग के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है? क्यों आदमी मर रहा है, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं? Instead of giving any help to him, people are more interested in making videos. ये सब आएगा ना. You can say that कि जो सोसाइटी का पार्ट है, स्टेट का पार्ट है, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, व्हेन यू विल सी दिस पार्ट, तो बड़ा क्लोज आता है आपके ये जनरल स्टडीज के. बट ये जनरल स्टडीज नहीं है, दिस नॉट जनरल स्टडीज. ये उसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, भाई का एस्पेक्ट है. अप्लाइड डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट. इसी तरह से पार्ट बी में आएंगे तो फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, रिलीजियस प्रॉब्लम्स आएगी. अब रिलीजियस प्रॉब्लम्स किसको लेके होगी? गॉड को लेके होगी. अच्छा, उसके एट्रीब्यूट कैसे? एट्रीब्यूट है कि नहीं है? नोशन कैसा है? उसका वर्ल्ड और मैन से रिलेशन कैसा है? प्रूफ्स क्या है भाई? बिना प्रूफ के तो हम लोग मानेंगे नहीं. हाँ, फेथ पे किसी को मानना हो मान ले. ऑब्जेक्टिवली टू एक्सेप्ट एनीथिंग ऑब्जेक्टिवली प्रूफ्स आर नीडेड. अच्छा भैया, गॉड है, वो ओमनीपोटेंट है, सब कुछ कर सकता, तो इविल क्यों है? ये प्रॉब्लम का पेपर है.
अच्छा, इमॉर्टेलिटी है कि नहीं, रीबर्थ है कि नहीं, लिबरेशन का क्या है, सोल का क्या स्टेटस है, सोल के लिए कितने अप्रोचेस हैं, रिलीजियस नॉलेज वगैरह, रिलीजियस एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। रिलीजन विदाउट गॉड, क्या ऐसा पॉसिबल है? दिस टॉपिक कैन ओनली बी डिस्कस्ड इन फिलोसॉफी, नॉट इन रिलीजन। अच्छा, रिलीजन एंड मोरालिटी, रिलीजियस प्लूरलिज्म है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सब रिलीजन कहते हैं कि भाई हम अल्टीमेट हैं, हम हाईएस्ट हैं, मेरे साथ आ जाओ सारे दुख खत्म। Religious exclusivism is there, inclusivism is there, religious struggles are there. Maximum struggle in the human history so far took place on the basis of religion. Dr. Radhakrishnan कह रहे हैं, Dr. Radhakrishnan, you might have heard its name, a great philosopher, great scholar. Nothing is so hostile for a religion than a religion itself. धर्म का दुश्मन धर्म ही है। फिर थोड़ा सा रिलीजियस लैंग्वेज वगैरह का पार्ट है, तो यू कैन सी 10 यूनिट्स आर हियर, 10 यूनिट्स आर हियर। पेपर 2 में भी 20 यूनिट्स आर देयर। हाँ, पेपर 2 में यू विल सी दैट कि अप्लाइड पार्ट है, तो यहाँ तो कोई थिंकर नहीं मेंशन है, नेम ऑफ नो थिंकर इज देयर, इंडियन एंड वेस्टर्न आर मेंशन विद अ फ्यू यूनिट्स। तो इंडियन को देखना है, थोड़ा सा वेस्टर्न। यहां पर भी यू विल सी दैट कि 4 थिंकर यहां मेंशन है, कौटिल्य, लास्की, बॉडिन ऑस्टन, गांधी, अंबेडकर। बाकी जस्टिस में यू कैन से दैट सबसे ज्यादा क्वेश्चन यू कैन सी ऑन अमर्त्य सेन। ये सेक्शन यू कैन से थोड़ा सा डायनेमिक है, थोड़ा सा डायनेमिक है। यू कैन से दैट अब कैपिटल पनिशमेंट है, मल्टीकल्चरलिज्म है, ओके। तो सम you can say 85-90% part of your syllabus is static, but 10% 15% part is, you can say, dynamic, there where you will see that some sort of current development, right? So altogether you will see that कि 40 units are there. पेपर 1 में 20 units भाई मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी, ये अप्लाइड पार्ट, एप्लीकेशन भी हैव टू सी, और इन्हीं पर क्वेश्चन आएगा। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि विद द स्टडी ऑफ वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन कम इन द सेफ जोन। अभी मैं वो सारी चीजें नहीं बता रहा हूं कि सिलेबस शॉर्ट है क्या है, दैट इज सब्जेक्ट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। यू कैन कम इन द सेफ जोन विद द स्टडी ऑफ very less number of questions, and so we can do, you can do revision in less time. Altogether 4 topics are there, 4 sections are there: Western philosophy, Indian philosophy जो पेपर 1 है, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन ये पेपर 2 में, और these topics you can say applied part, ये तो you can say that I don't think that anyone among you is not aware about these words. राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, सब जानते हैं। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा उसको एनालाइज करके डीपली वी हैव टू स्टडी, बिकॉज हियर समटाइम्स यू कैन सी द क्वेश्चंस ऑन इंडियन कंटेक्स्ट, समटाइम्स यू कैन सी द क्वेश्चन नॉट ऑन इंडियन कंटेक्स्ट, राइट? तो यू कैन से दिस इज ऑल अबाउट, ये सिलेबस हुआ 2 पार्ट में, ये ब्रांचेस हुई मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। सब्जेक्ट क्या है? ये है ट्रिक के थ्रू वायलेशन, व्हेन वी वायलेट समथिंग एल्स, रैशनल थिंकिंग, और दैट वे यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड subject is very interesting, and this will make you a think tank, and you can do
very good performance in your essay paper, ethics paper, interview as well. These are additional benefits what you will get in with the study of philosophy. पेपर 2 में सोशियो पॉलिटिकल के पार्ट से some sort of help you will get in your general studies as well, right? तो आज हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा मैंने फिलोसफी, व्हाट द फिलोसफी इज, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, देन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को बहुत शॉर्ट में डील किया, और फिर थोड़ा सा मैंने सिलेबस को आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ यू हैव टू अप्रोच द subject, and little explanation I have made regarding the syllabus. So I think some basic information about this subject we have got from this video, and we will keep on doing this. And if you are planning to opt your subject as philosophy, you know that this is very good, and this subject is very good for both, चाहे कोई ह्यूमैनिटीज से है चाहे साइंसेस से, बट ही मस्ट हैव, वी कैन से, सम काइंड ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड नॉलेज, तो उसको बहुत मजा आएगा सब्जेक्ट में, राइट? तो आज के लिए इतना ही, एंड सी यू इन लेटर वीडियोस. सो थैंक यू सो मच. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.